بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چھٹی جماعت کا نیا سبق شروع کریں گے جس کا عنوان ہے شیخ سعدی کے اقوال۔ شیخ سعدی، ان کا اصل نام شرف الدین تھا۔ سعدی یہ تخلص کیا کرتے تھے۔ تخلص ایسا نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ اقوال، یہ قول کی جمع ہے، یعنی بات، ایسی بات نہیں جو عام طور پر بات چیت کرتے ہیں، ایسی بات جس میں کوئی عقل یا دانائی کی بات بیان کی گئی ہے۔ آج اس سبق میں ہم شیخ سعدی کی عقل و دانائی سے بھرپور اقوال پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حکیم مشرق یعنی مشرق کا ایک عقل مند انسان۔ وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے تھے۔ معلم اخلاق، اخلاق سکھانے والے۔ معلم کہتے ہیں استاد۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ سلطان سعد زنگی ایران کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دور میں یہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ طویل، لمبی، یعنی انہوں نے لمبی عمر پائی اور اپنی زندگی کا زیادہ حصہ سیر و سیاحت میں گزارا، یعنی گھومنے پھرنے میں، ملکوں سفر کرنے میں، لمبے سفر کرنے میں گزارا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری جو منظوم ہوتی ہے، جیسے آپ نظم پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں، اسے شاعری کہا جاتا ہے۔ اور نثر شاعری کی ضد ہے۔ جس طرح آپ کہانی پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں یا عام بات چیت کرتے ہیں تو نثر ہوتی ہے۔ شاعری میں ان کی مثنوی، بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ مثنوی ایک لمبی نظم کو کہا جاتا ہے، اور نثری کتاب جس طرح آپ کوئی ناول یا کہانی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی بھی عقل و دانائی، کوئی بھی بات آپ لکھ سکتے ہیں، پیراگراف کی صورت میں، کہانی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ یعنی جو ان کی کتاب گلستان ہے، اس میں بہت زیادہ اچھے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، جو ہمیشہ جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بھی پرانے نہیں ہوتے، جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے ان کی اہمیت زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور دانش و حکمت یعنی اس میں عقل و دانائی کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے اسے ادب عالیہ یعنی اعلیٰ قسم کے ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، یعنی جتنے بھی بڑی بڑی زبانیں ہیں، جیسے اردو ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، عربی ہے، ان تمام زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ذیل ہیں۔ دنیا کا مال، نمبر 1، دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ یعنی اگر ہم دنیا میں مال کماتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، دولت حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے ہے کہ ہم اس کو اپنے آرام اور سکون کے لیے استعمال کریں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان پیسہ کمانے والی مشین بن جائے، پیسہ کمائے نہ تو اس سے اپنے لیے بھی آرام اور سکون کا اسے خیال رہے پیسہ کمانے کے چکر میں۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب دولت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ بخل جو ہیں اس کا ذریعہ بنتے ہیں، اور مال جو ہے اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو دیا ہے تو اس سے اپنی زندگی میں سکون حاصل کرے، اس لیے نہیں کہ انسان پیسے کمانے والی مشین بن جائے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ احسان کرنا نیکی یا بھلائی کرنا۔ وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں تو دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا رویہ اپنائیں، ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسی صورت میں اب جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
तीसरे नंबर पे है दो आदमियों की कोशिश बेफायदा है, एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर उस पर अमल ना किया। दो आदमी कोशिश बेफायदा है, वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं। ठीक है, हम माल या दौलत हासिल करते हैं अपनी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आराम और सुकून देने के लिए। अगर हम माल हासिल करें और उसे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें, उस कमाए हुए माल का कोई फ़ायदा नहीं है, वो इंसान के किसी काम नहीं है। दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर उस पर अमल ना किया। अगर आप इल्म हासिल करते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं और सीखते हैं, अगर आप उन पर अमल ना करें तो आपकी उन सीखी हुई बातों का कोई फायदा नहीं है। नंबर 4, बेअमल आलम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशक। लोग तो इससे फायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फायदा हासिल नहीं कर सकता। बेअमल यानी जो अमल ना करता हो, आलम जिसने बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर रखा हो। अब एक आलम है जिसने बहुत ज्यादा इल्म हासिल किया, उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में सर्फ कर दी, लेकिन वो अपने इल्म पर जो है वो अमल नहीं करता। लेकिन दूसरे लोग उसके पास आते हैं, उससे इल्म सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, उस पे अमल करते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत को संभाल लेते हैं। तो ऐसे आलम की मिसाल उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स की है जो अंधा है लेकिन उसके हाथ में मशल है। मशल कहते हैं रोशनी की एक, जिस तरह आप कोई टॉर्च समझ लें या कोई मोमबत्ती या दिया वगैरह समझ लें जिससे रोशनी फैलती है अंधेरे में। जैसे अंधे के हाथ में रोशनी की कोई चीज हो, मशल हो, जाहिर सी बात है अंधे के लिए तो अंधेरा है या रोशनी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे आलम की जिंदगी ऐसी होती है जैसे वो अंधा लेकिन उसने हाथ में मशल पकड़ी हुई। नंबर 5, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे शेर बनाना है। ठीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात का हुक्म दिया है कि आप दूसरों के साथ जो है दरगुजर का मामला रखें, किसी से गलती हो जाए तो उसको माफ कर दें, दुश्मन भी हो तो उसको माफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप बेमौका यानी ऐसे मौके पर जहां उसको माफी ना देनी हो और आप उसको माफी दे दें या उसके साथ नरम रवैया अख्तियार करें तो वो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाएगा, आपको मजीद नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दरगुजर करने से पहले भी मौके की मुनासिबत को देखना चाहिए। नंबर 6, वो दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्त हो उसके दांतों का जख्म ज्यादा गहरा होता है। दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्त हो यानी एक ऐसा शख्स जो आपका दुश्मन है, आपको तकलीफ पहुंचाता है, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती क्योंकि आप अपने दुश्मन से यही ऐसे ही रवैये की उम्मीद रखते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा या तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा शख्स जो जिससे आप मोहब्बत करते हो या आपका दोस्त हो या आपको कोई ताल्लुक हो, उससे आप ये उम्मीद नहीं रखते कि वो आपको तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन जब ऐसा शख्स तकलीफ पहुंचाता है तो उसकी तकलीफ ज्यादा होती है, कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो उसकी दी हुई तकलीफ का एहसास ज्यादा होता है। नंबर 7, दीवार के पीछे भी बात करते हुए होशियार रहे, हो सकता है दुश्मन दूसरी तरफ कान लगाकर सुन रहा हो। यानी आपको बातचीत करते हुए मुहतात रहना चाहिए। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो दोस्त के रूप में दुश्मन हों, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो इसलिए आपको अपनी जो अहम बातें होती हैं या आपकी जो राज की बातें होती हैं उन्हें करते वक्त एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी इन बातों से वाकिफ हो जाए, आपको उनके जरिए नुकसान पहुंचाए। इसलिए कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगरचे माफ करना अच्छा है लेकिन लोगों को सताने वाले के जख्म पर मरहम ना रख। मरहम ऐसी दवाई जो जख्म पे लगाई जाती है जख्म को आराम देने के लिए। शेख सादी कहते हैं माफ करना अच्छा है, यानी एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है अगर आप दूसरों को माफ कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुश होते हैं, उनकी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं, जब वो खुद तकलीफ में हो या उनको चोट पहुंचे तो उनके जख्म पर मरहम नहीं रखना चाहिए, उनके दर्द का मदावा नहीं करना चाहिए। नंबर 9, बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसा रहता है। यानी एक ऐसा शख्स जिसमें कोई बुरी आदत है तो वो अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा किसी न किसी तकलीफ का शिकार हो जाता है। जैसे अगर किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को चोरी करने की आदत है या धोखा देने की आदत है, ऐसी बुरी आदतें इंसान के अंदर जब होती हैं तो इंसान अपनी बुरी आदतों की वजह से मुश्किल में फंसा रहता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि शुरू से अपने आप पे
अपना जायजा लेता रहे, अगर उसे महसूस हो कि उसके अंदर कोई भी बुरी आदत जो है वो पैदा हो रही है तो उसको शुरू में काबू करे, लेकिन जब उसकी आदत बन जाएगी तो वो हमेशा अपनी बुरी आदत की वजह से मुश्किल में फंसा रहेगा। बात इस वक्त कर जब तुझे यकीन हो कि असर होगा, बेफायदा बात करके अपनी कदर ना घटा। यानी हमें नसीहत भी देखभाल कर करनी चाहिए। जब हमें पता हो कि हमारे अल्फाज सामने वाले पे असर करेंगे, वो हमारी बात को सुनेगा और उस पर अमल करेगा। जब आपको नजर आ रहा हो कि सामने वाला आपकी बात नहीं मानेगा, वो आपकी कही गई बात को कोई अहमियत नहीं देगा, तो इसलिए बगैर मौके की मुनासबत से बात करके अपनी अहमियत कम नहीं करनी चाहिए। नंबर 11, 10 आदमी एक दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खा सकते हैं, मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। इसमें उन्होंने फितरत बयान की है। इंसान जो है उसकी फितरत में सुलह सफाई है, वो बैठ कर दस्तरखान पर खाना खा सकते हैं। दस्तरखान ऐसा कपड़ा जिस पर खाना चुना जाकर बैठ के खाना खाया जाता है, मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। कुत्ते जो हैं उनमें मिल बांट कर खाने की फितरत नहीं है, उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती, इसलिए वो कभी भी चाहे कितना ही बड़ा मुर्दार क्यों ना हो, उन्हें नजर आ रहा हो कि वो खा भी लेंगे तो उसके बाद भी बच जाएगा, फिर भी वो उसको आराम से बैठ के मिल बांट कर नहीं खाएंगे। नंबर 12, सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो लोगों को सताता है, क्योंकि जब उस पर मुसीबत पड़ेगी तो कोई इसका दोस्त ना हो। यानी बदनसीब जिसकी किस्मत अच्छी ना हो। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा रवैया अपनाते हैं, अखलाक के साथ पेश आते हैं, तो लोग हमसे खुश होते हैं। अगर हम पे कोई मुश्किल आएगी तो वो हमारा साथ दें। लेकिन ऐसा शख्स जो दूसरों को तंग करता रहता है बगैर किसी वजह के उनके लिए परेशानी का बायस बनता है, उनकी कमजोरियों से फायदा उठाता है, वो सबसे बदनसीब शख्स है। क्योंकि जब उस पर कोई बुरा वक्त आएगा, उससे कोई मुसीबत पड़ेगी, कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो कोई भी शख्स उसकी मदद करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि उसने जब उसके पास ताकत थी या रसूख था तो उसने हमेशा इनको तंग किया, जलील रुस्वा किया, तो इसलिए बुरे वक्त में कोई भी उसके काम नहीं आएगा। नंबर 13, जो बुरी सोबत में बैठता है उसकी सोच कभी अच्छी नहीं होगी। सोबत कहते हैं आपकी हमराही, साथ या दोस्त अहबाब जिनमें आप रहते हैं, अगर वो अच्छे नहीं है तो इंसान की सोच भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इंसान जहाँ बैठता है, जिन लोगों से मिलता जुलता है, उसकी गुफ्तगू, उनका किरदार, उनकी बातचीत इंसान पे असर अंदाज होती है। इंसान फूलों को हाथ लगाएगा तो उसके हाथों से खुशबू आएगी, अगर वो कोयले को हाथ में लेगा उसके हाथ काले हो जाएंगे। ऐसा ही असर इंसान की सोबत का होता है। अगर वो अच्छे लोगों में बैठेगा तो उसकी सोच अच्छी होगी, अगर वो बुरे लोगों में बैठते तो उसकी सोच कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। नंबर 14, हासद के लिए बद्दुआ करने की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। हासिद ऐसे शख्स को कहते हैं जो दूसरों के पास खुशियों को देखकर जो है ये सोचे कि उससे कोई भी जो खूबी या उसके पास कोई सलाहियत या उसकी कोई किस्मत में अल्लाह ने खूबी लिखी है वो उससे छीनकर मुझे मिल जाए। कहते हैं हासिद के लिए अगर कोई शख्स हसद करता है, बद्दुआ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही हसद की आग में, वो पहले ही तकलीफ में है। क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने हर शख्स को कोई ना कोई खूबी, कुछ ना कुछ अच्छी चीज से नवाजा है। वो जब भी किसी के पास कोई अच्छी चीज देखता है, कोई सलाहियत देखता है, कोई नियमत देखता है अल्लाह ताला की, तो वो जलना शुरू हो जाता है, उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि इसके पास में इससे छीन के मुझे मिल जाए। वो ऐसी मनफी सोचों में घिरा रहता है, हर वक्त जलता कूदता रहता है, इसलिए उसको बददुआ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफ में है। कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है, मगर हक शनास कुत्ता नाशुक्र इंसान से बेहतर है। यानी कुत्ता जो है उसको पसंद नहीं किया जाता, उसको घर में रखने से मना किया गया है, नापाक होता है, यानी उसे जलील समझा जाता है, घटिया समझा जाता है, मगर हक शनास होता है, यानी जो हक को पहचानने वाला है, वो नाशुक्र इंसान से बेहतर है। ऐसा इंसान जो नाशुक्री करता है, जो अल्लाह ताला की दी हुई नियमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अगर उसको ये लगता रहता है कि मैं जो हूँ, मुझे किसी किस्म की जो है वो नियमत नहीं अता की गई, मुझे किसी किस्म की नेमत अता नहीं की गई, या मैं गरीब हूँ, कोई भी चीज़, हर सी बात है दुनिया में, हर इंसान के पास सब कुछ नहीं होता। वो जो चीज़ उसके पास नहीं होती उसी को देखकर सोचता रहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई नेमत, कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई सलाहियत अता की है। जो इंसान शुक्र नहीं करता वो हकशनास कुत्ते से भी कम करे। मैं उम्मीद करती हूँ
ہمارا یہ عنوان ختم ہو گیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے شیخ سعدی کے اقوال میں سے 5 اقوال خوشخط اپنی اردو الف کی کاپی پر لکھنے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.